Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब मुझे मालूम है जो न्यू इनटेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो लोग कल की न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्या ये इतने रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो गाइज आज का वीडियो उसी पे है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स है कि ये रूल क्या चेंज हुआ है, हम लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा, क्या अब हम कनाडा नहीं आ पाएंगे, हमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं, एंड क्या सब है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो तो बनता है एंड आज मैं आपको सारे रूल्स बताने वाली हूँ एकदम डिटेल में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना एंड आई होप आपके वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आप किसी से भी ना पूछो कि क्या चेंजेस है, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड अब चलते हैं आगे एंड बात करते हैं 3 major changes in Canada. Some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students at graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. पहले सबसे मेजर चेंज की बात करते हैं तो जो मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि वो लोग इस साल कैप्स लगाने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टडी परमिट में एंड सिर्फ 3,64,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट इशू किया जाएगा। एंड ये जो पहले के नंबर्स थे, पहले के ईयर्स के नंबर्स थे एंड जो अब का नंबर होगा उसमें अराउंड 35% का डिक्रीज दिखने वाला है। एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने ये रीज़न भी दिया है बिकॉज ऑफ द एग्रीवेटिंग हाउसिंग क्राइसिस एंड ऑल दैट। जो जॉब मार्केट इतना डाउन है, जो हाउसिंग क्राइसिस हो रहे हैं, इन सब की वजह से इन लोगों ने सोचा है कि कैप लगाना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट में, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी
एंड ये वर्ड आउट ऑफ कंट्रोल मिनिस्टर ने अपनी वीडियो में बोला है। सो ये मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही, जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लिटरली नंबर्स मिलियंस में चले गए थे, स्टूडेंट्स आए जा रहे थे। इसीलिए अब ये एक स्टेप लेना पड़ा कि एक कैप अगर लगा देंगे, फॉर 2 years ये कैप लगाया गया है एंड आई होप इससे सिचुएशन बेटर हो। और ये जो लाइक कैप लगाया है वो मेजर 3 प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। पहला है ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक 50% स्टूडेंट्स ओंटारियो में ही हैं, तो 50% कैप ओंटारियो में लगने वाला है। देन सेकंड प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया एंड थर्ड है नोवा स्कोशिया। सो ये 3 मेजर प्रोविंस है जिन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। सो अब अगर कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि आप लोग जो कॉलेजेस चूज करने वाले हो उसके रिलेटेड भी मैं आगे एक पॉइंट कवर करने वाली हूँ, क्योंकि अब उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए हैं। तो गाइस सेकंड पॉइंट है, जिन बच्चों को हमें मालूम था पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, पहले जो स्टूडेंट्स थे कोविड के टाइम पे, उनको अगर 3 साल का वर्क परमिट है एंड वो एक्सपायर होने वाला है, तो उनको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता था वापस से अपना एप्लीकेशन डालने को। बट अब जो है, अब सिर्फ 3 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा स्टूडेंट को, उनको एक्सटेंशन का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जितना दिया गया है एक टाइम पीरियड उतना आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि लाइक लोग एक्सटेंशन करवा के बहुत ज्यादा मिसयूज भी कर रहे थे ये चीज का, तो ये बहुत अच्छा हुआ। एंड गाइस सबसे मेन बात, जो लोग कंसल्टेंसी का सुन के कुछ भी सुन के जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, तो गाइस यहाँ पे कॉलेजेस के मॉडल रहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये कॉलेजेस जो है, अगर वो DLI के अंदर नहीं आते तो आप लोग समझ लो, अगर आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो आपका जो PGWP है वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। एंड ये मिनिस्टर ने बोला गया है कि ये कॉलेजेस लाइक बड़े बड़े अमाउंट में फीस लेते हैं स्टूडेंट से, एंड इतना कोई उनका एजुकेशन भी नहीं मिलता, एंड जिसको देखो वो आ जाता है यहाँ इजीली, उनको ऑफर लेटर भी मिल जाते हैं। तो गाइज अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो मेक श्योर आपका जो भी कॉलेज है वो DLI के अंदर आता हो। एंड DLI आपको चेक करना हो तो आप IRCC के पोर्टल पे जाके देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज अंडर इसके है कि नहीं। एंड गाइज अब जो भी लाइक स्टूडेंट्स कनाडा आएंगे, उनको अपना जब भी फाइलिंग करेंगे, उनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन का एक लेटर है वो लिख के साथ में अटैच करके देना पड़ेगा। एंड IRCC पूरा बैकग्राउंड चेक वगैरह करेगी। सो मेक श्योर आप बहुत सोच समझ के अपनी कॉलेज चूज कर रहे हो एंड एप्लीकेशन कर रहे हो। ये नहीं करना कि जो कंसल्टेंसी वालों ने बोला वो कॉलेज चूज कर ली एंड उधर आ गए, वो कोर्स लेके आ गए। अपनी खुद की रिसर्च करनी है एंड तभी आना है। एंड गाइज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए स्टूडेंट्स को डाउट है कि हम लोग अभी कनाडा में है तो हमको मिलेगा या नहीं। तो गाइज जो लोग कनाडा में हैं, ये सिचुएशन उनको नहीं अफेक्ट करने वाली। जो लोग अब प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, लाइक जो सितंबर इनटेक में आएंगे स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये है। एंड वो इफेक्टिव डेट बहुत जल्दी बताएंगे कि कब से ये वैलिड होगा। और अब तक हमें लाइक ऐसा बोला जाता था, अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है तो आपको 1 साल का और वर्क परमिट मिलेगा, एंड अगर 2 साल का है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बट अब ये चेंजेस हो गए हैं कि अगर आपका 1 साल का भी कोर्स होगा तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। एंड ये प्रोग्राम्स लाइक मास्टर्स का है आपका, आप डॉक्टरेट प्रोग्राम कर रहे हो, आपका कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो ये रूल भी वो लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं इफेक्टिव। इसकी डेट अभी पता नहीं है कब से होगा, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। सो गाइज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की ये अपडेट थी। एंड गाइज थर्ड पॉइंट है, जो लोग अपने स्पाउसेस को यहाँ कनाडा आके लाइक उनको ऑफर करते थे, स्पॉन्सर करते थे कनाडा आने के लिए, वो भी अब बंद होने वाला है। क्योंकि लोग लाइक एक बेसिक से कॉलेज में एडमिशन लेके ऑफर करके बुला लेते थे, तो ये अब सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग एनरोल्ड है डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए।
एंड अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है या PGWP है तो आप अपने स्पाउसेस को कनाडा नहीं बुला सकते। अब ये रूल आने वाला है। सो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही हो तो फटाफट उसको ख़त्म कर दो। 1 सितंबर से कुछ भी चेंज हो सकता है एंड कभी भी ये लोग बोल सकते हैं कि अब से ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर अपनी कोई प्रोसेस कर रहे हो तो जल्दी जल्दी खत्म कर दो। एंड प्लीज मैं आपको एक बार और क्लियर बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला है दीज रूल्स विल बी एप्लीकेबल सून। तो प्लीज ये मत पूछना कि अब हम क्या करें, हम कैसे आए, ये वो। तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है, इसकी डेट्स बहुत जल्दी पता चल जाएगी एंड मोस्टली मुझे लग रहा है कि 1 सितंबर 2024 से आएंगे सारे चेंजेस। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड। एंड यही मेजर 3 चेंजेस थे जो हुए थे एंड हम लोग को मालूम ही है GIC तो ऑलरेडी डबल हो चुकी है। और हम लोग जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग का स्टडी परमिट फाइल हो गया था 7 दिसंबर के पहले, वो लोग एलिजिबल है मोर देन 20 आवर्स काम करने के लिए। सो ये तो 2 रूल पहले ही आ गए थे एंड ये बहुत बड़े 3 अपडेट और है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कोई भी डाउट है आराम से कुछ भी हो मुझे मैसेज करो, इंस्टा पे DM करो या तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लो, जो भी है मैं बता दूंगी आपको। एंड एक बहुत बड़ी बात वापस कह रही हूँ कि अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहुत सोच समझ के चूज करना। एंड अब अगर कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि कनाडा इज चेंजिंग नाउ। इट विल गेट बेटर, आई थिंक सो। एंड आई होप अब सबको हाउसिंग जो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इतनी क्राइसिस चल रही थी। एंड एक बात और, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगर कॉलेजेस स्टूडेंट्स को बुला रही है तो उनको उनके अकोमोडेशन का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इतने सारे स्टूडेंट्स बुला रहे हो, आप सबको ऑफर लेटर दे रहे हो, तो ये नहीं है आप लोग बस बुलाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो लोग रहेंगे कहाँ। तो ये भी अब बहुत ध्यान रखा जाएगा इस चीज का भी। सो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई है रूल से, क्योंकि मेरे को तो बहुत सही लगा ये चेंजेस किए हैं। आई नो न्यू स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं वो सोच रहे होंगे ये तो पार्शियलिटी है, ये रूल अभी क्यों आना था यार, हमारी किस्मत खराब है। बट ये रूल्स कनाडा में जो स्टूडेंट्स है वो लोग जानते हैं कि ये कितने ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि हम लोग को मालूम है हम कितना सफर कर रहे हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पॉजिटिव लगा एंड ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है कनाडा में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय फॉर नाउ।